عشق سے اجتناب کر لینا, باقی سب کچھ جناب کر لینا. پہلے مہنگائی پہ تو کرو قابو, بعد میں احتساب کر لینا. گراں فروشی ہے جاری, تبھی تو آ رہے ہیں واسع چودھری. دیکھتی آنکھوں, سنتے کان اور دھڑکتے دلوں, آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کرکٹ کے بیٹسمین لگ رہے ہیں سر. اس طرح دے بیٹسمین رن آؤٹ ہو گئے تے شرمندہ نہیں ہوندے, کپتان نو جا کے کہہ رہے ہوندے اگر میں رن مرید نہ ہوندا تے رن آؤٹ نہیں سی ہونا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੋਲਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਗੇਂਦ ਆਸਤਾ ਕਰਾਂ. اچھا اس طرح کے بیٹسمین جڑے ہوندے نا جی, امپائر نو جانے کیا جاندے نے, اگر میں ڈبل سینچری کروں تو آپ کی فیملی میں کوئی رشتہ مل سکتا ہے؟ بیٹنگ کریں گے تے اپنی غلطی تو آؤٹ ہو گئے. مثلا بولر نے گیند کرائی تے بیٹ چھوڑ کے تے کیپر نو کہہ رہے سیلفی پلیز. ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ 6 ਛੱਕੇ ਖਾ ਲੇ. ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. اچھا پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے, اچھا کھیلنے کے لیے گئے, انہوں نے گلوز دیے, گلوز پہن کے اتو سونے دی انگوٹھیاں پا لی. لیجیے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو, پاکستان تحریک انصاف کے MP پنجاب کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی ہیں, جناب عمر تنویر بٹ. ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان ماڈل اینڈ ایکٹر محترمہ اسوا فاطمہ. ویلکم ٹو دا شو جی. اسوا فاطمہ جی آئی ہیں, اتنا انتظار کرایا ہے انہوں نے, اور ایک بڑے پیارا میں شعر لایا ہوں تنویر بھائی جان کے لیے. عمر تنویر بٹ صاحب MPA ہیں اور PTI کے, ہر ایک وعدے کے پکے ہیں. عمر تنویر بٹ صاحب نظر کچھ آتے ہیں, اندر سے کچھ, اور جلسوں میں کچھ ہیں. سمجھتے ہیں سیاست کو عمر تنویر بٹ صاحب. کیا بات. ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, شکر ہے. ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ. اوئے میں مر گیا. ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਡੰਗ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਭੁੱਖ 'ਚ ਲੰਘਿਆ. دھواں بنا کے فضا میں اڑا دیا مجھ کو, ارے واہ, میں جل رہا تھا کسی نے بجھا دیا مجھ کو. میں محبت کرتا رہا اس سے کیسر, اور صبا ایزی روڈ والی نے چونا لگا دیا مجھ کو. جی بٹ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, فرسٹ کلاس. آپ سنائیں, ان کو ہمیشہ سبا ہی کیوں چونا لگاتی ہے؟ سر تسی ملک نو لا لیا, میں نو صبا نے لاتا. آپ کو ہمیشہ چونا لگتا ہے. چونا اور سبا یہ دونوں آپ کی زندگی میں کامن ہے. ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ. ہاں جی ہاں جی. مگر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے؟ ماشاءاللہ وہی فٹنس برقرار رکھی ہوئی ہے آپ اللہ نے. کا شکر ہے جی. نہ آپ بٹ لگ رہے ہیں اور نہ ہی آپ فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین لگ رہے ہیں. فوڈ اتھارٹی کا چیئرمین تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی پرسیپشن چینج کر سکوں, لیکن یہ بٹ والی جو ہے نا, اس کو کوشش کرنے کے باوجود میں چینج نہیں, یہ نہیں چینج ہو سکتی. کیوں نہیں چینج ہو سکتی؟ وہ اس لیے کہ میں جتنے بٹ حضرات ہیں ان سے ملتا ہوں, وہ سب موٹے موٹے. اب میرا بڑا بھائی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ موٹا ہے. اچھا, تو اس کو دیکھ کے پورے ہلکے کے لوگ کہتے ہیں جی تسی صحیح بٹ لگدے ہو, اے تے پتہ نہیں جڑا نا تہاڈا ملنگ پائیے دا. سر مخالف بٹاں تو ڈرے بھی ہوئے نے نا, وہ پاوے پوے کھاندے سن دے اندر نے. پائے کھاتا ہوں میں, بڑے شوق سے کھاتا ہوں. پائے, نہاری, ہر چیز کھاتا ہوں. منیاں دے پاوے کھا رہے ہو سر. افتخار بھائی نے اپنی گھر کی سٹوری جو ہے نا وہ اس کے اوپر واپس آؤں گا. اسوا آپ کے کیا حال ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے شو دیکھا ہوا ہے نا؟ بالکل دیکھا ہوا ہے. سو یو ہیو این آئیڈیا. ایک چیز مجھے انٹرسٹ, آپ نے BSc فوڈ انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یہ کیا ہوتی ہے ذرا یہ تو بتائیں ہمیں. میں بتاتی ہوں, اس سے پہلے ایک بات بتا دوں. جب میں کسی کو بتاتی ہوں نا فوڈ انجینئر, تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا کیا بنا لیتی ہیں آپ. ہاں, تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ریسیپیز, کوکنگ, روٹیاں,
ये है एक बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स पे। इसमें होता है फूड इंजीनियरिंग में हम प्रोसेस करते हैं फूड की, उसकी प्रिजर्वेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हम मतलब फूड को कैसे ज़्यादा अच्छा प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए, बिजली कैसे सेव कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ये तो फिर आप इंजीनियरिंग। एक साल से जड़ा 100 रोटियां ला ले इंजीनियर होंदा जी। तो आप फिर बिल्कुल रोटियों के सही बाद। टाइम पे आई हैं आज हमारे साथ। आपको पता है फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है पंजाब की। अच्छा ये जितना भी आप खाना पीना करती हैं ये सब के ऊपर चेकअप रख सकते हैं। अच्छा ये सारे दे मसाले भेजदे ने जी। चल मसाले नहीं बेचते, मसाले चेक कर सकते हैं यार। बेसिकली इनकी जो फील्ड है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। हम भी अब पंजाब फूड अथॉरिटी में जो नया एक और स्टेप लेने जा रहे हैं वो है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, जो कि पाकिस्तान में इससे पहले बिल्कुल इग्नोर्ड था। हम किसी भी चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपना एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें हमने PhDs को, इससे पहले PhDs क्या कर रहे थे, वो बाहर जाके किसी रेडी वाली पे चेक कर रहे थे कि आपकी सब्ज़ी पे सिलिकॉन है नहीं है, आपका निम्को ठीक है नहीं है। अब हमने उन PhDs को इकट्ठा किया है एक रूफ़ के अंडर जहाँ पे हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और हमारे पास तकरीबन 150 के करीब ऐसी क्वेरीज़ हैं जिनके ऊपर वो रिसर्च करके हमें बताएंगे कि इसका बेस्ट सोल्यूशन और इसका बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जिसमें इन्होंने ऑलरेडी अपनी मास्टर्स ये तो आप बड़ा ज़बरदस्त टाइम पर आ गई हैं, आप इनकी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। हम इनकी भी खिदमत ज़रूर हासिल करेंगे जी। वो हम वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोगों की कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर ये देखें आपने बिल्कुल सही डिग्री की है। हाँ नहीं इनको अच्छी डिग्री है इनके है पास ना। जो है और मुझे एक बात बताएं, वैसे आप लोगों की फूड अथॉरिटी के अंदर कोई फोर्स भी बड़ी है? लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस पे प्राइम मिनिस्टर का चूँकि बड़ा फोकस था, इमरान खान साहब का, उसके बाद CM साहब ने हमें 1000 बंदा और रखने की परमिशन दी। अच्छा। क्योंकि अमरूदां से कीड़े बहुत निकल रहे हैं ना ख्याल करने वास्ते। NTS टेस्ट भी हो गए उनके इंटरव्यूज़ भी हो गए, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। पहले हम उनको ट्रेन करेंगे। इससे पहले ये होता था जो भर्ती होता था FSO वो सीधा उसको फील्ड में अडॉप्ट करा दिया जाता था, लेकिन मैंने आने के बाद इस रूल को चेंज किया। अब हम उनकी एक 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें पहले हम उनको सिखाएंगे आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस जो फील्ड का था कि हमें क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, उन मुश्किलात को कैसे आपने हैंडल करना है। सो फील्ड का नॉलेज जो है वो आपने भी माशाल्लाह डिग्री की होगी, आपने देखा होगा पाकिस्तान में मैंने MBA किया तो मैं वाइल आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी तो मुझे लगा कि मैं पाँव बाहर रखूँगा तो कंपनीज़ की लाइन होगी, वो कहेंगे प्लीज़ आ जाओ हम तुम्हारा वेट करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब फील्ड में गए तो पता चला जो एकेडमिक नॉलेज हमने गेन किया है इट्स नॉट रेलिवेंट विद द मार्केट और द फील्ड। तो अब हम उन लोगों को पहले 3 मंथ्स की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको क्या फेस करना है, बाहर जाना है, आपको बिहेवियर कैसा रखना है, आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग इस वक्त चल रही है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जब वो मार्केट में आएंगे दे विल बी एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उनकी जो फूड अच्छा। से रिलेटेड सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। नहीं जी मैंने कभी किसी फ्रूट की दुकान पे जाके ये नहीं कहा कि मैं चेयरमैन हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का। ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं ਤੇ ਗੱਡੀ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ मैंने ਕਿ आज तक कभी किसी रेस्टोरेंट में जाके अपॉइंटमेंट पे नहीं गया, कभी किसी को नहीं जाके इंट्रोडक्शन करवाया। अगर किसी को पता हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने कभी ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट को सील भी नहीं किया। मैं ऑपरेशंस में भी कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ਐਵੇਂ ਵੇਟਰ ਨੇ 500 ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 250 ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। देखा ना ये किस किस्म की ख्वाहिशात हैं इनकी और किस किस्म के तजर्बात इनके जहन में हैं। मेरे साथ मतलब वो अब जैसे कैसर ने बात की, मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई समझ ले, उसने एक दफ़ा क्या किया, एक रेस्टोरेंट पे गया, कोरोना की वजह से बंद था, तो उसने जाके उनको कहा कि खाना दे दें हमें। उन्होंने कहा जी कोरोना की वजह से ऑफ है, हम आपको खाना नहीं दे सकते। तो उसने मेरा कार्ड निकाल के उसके डेस्क पे रखा और उसको कहा खबरदार मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा बड़ा भाई जो है वो इस वक्त चेयरमैन है पंजाब फूड अथॉरिटी का, तो अब मैं तुम्हें देखूंगा। वो इतना कह के बाहर निकला तो मैनेजर उसके पीछे भागता हुआ आया और उसने कहा सर नहीं हम आपको खाना दे देते हैं। तो ये बात जब उसने मुझे बताई तो उसके ऊपर मैंने उसको काफ़ी डांटा और उसको कहा कि आज के बाद अगर तुम्हें मैंने ये सुना कार्ड खो ले उसने को मैं अपने। आज के बाद ऐसी हरकत की तो फिर आधा खाना मुझे देना है। नहीं मगर ये एक जिस बात का आपने जिक्र किया ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही है। प्रैक्टिस है जी, कॉमन। मतलब ये सिर्फ आप तो चले फूड के हैं तो वहाँ पे कार्ड शो कर दिया, हम पुलिस वाले कहीं पे रोकते हैं तो वहाँ कोई कार्ड शो कर देते हैं रेलेवेंट के जी ये फलां बंदा। ये एक बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे देखी गई है और वही बात है कि अब इसको निगेट करने का जो अमल है वो ग्रूमिंग के जरिए हो सकता है। वो एग्जैक्टली वो लोगों नहीं कर रहे हैं। ये तो चले खैर आपको उस बच्चे ने बता दिया कि जी मैंने आपके ये कार्ड के, वरना तो आमतौर पर तो लोग बताते भी नहीं कि मैंने आपके साथ ये हरकत की है, नहीं बताते और आपका नाम यूज़ किया है। बिल्कुल ऐसे आपने कभी ऐसी कोई की है चीज़? नहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कार्ड का क्या करना है?
ऐसा नहीं, मैं कभी उन्हें आप गाइड करती हूँ कि आपको कैसे फूड को ज्यादा अच्छी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना अच्छा चाहिए, रेस्टोरेंट में serve आप करना देती हैं चाहिए। उनको गाइडलाइंस? हाँ, मैं रिटर्न नोट उनको स्पेशली दे के जाती हूँ। तो आपको तो बताती बुला हूँ। के रेस्टोरेंट वाले फंस जाते होंगे। नहीं, उनका भी मैनेजर आ जाता होता है ना, वो स्पेशल आके पूछता है। सर पूरे महल्ले च करेले छिलन का तरीका भी दस देने जाके, इंजीनियर नहीं होना। करेले छीलने का इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं शायद। वैसे आप छील लेती है करेले? नहीं, मैं गोल रोटी बना लेती हूँ। सिर्फ गोल रोटी तक की बात महदूद है? ये बहुत बड़ी चीज़ है गोल रोटी बनाना। रोटी गोल ही होती, तलवार दे शेप वाली केड़ी रोटी है दिख रही देखो तो। नहीं मगर वैसे आप कुकिंग का शौक रखती हैं या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल कुकिंग का बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं रखती, सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ खाना जो है उसको आप जज करती हैं। सर एक बार इन्होंने कुकिंग की थी, वो प्रेशर कुकर दी थी, कीता तो कंध च वजया, यकीन करो क्योंकि सेहत ऐसी है। यार सेहत एक तो ये, मैं अब इसका क्या करूं, ये जो आप लोगों के जहन में बैठा हुआ है क्या है सेहत? सर मरदे दम तक ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नहीं तो तुसी चेंज ही हो जाओ। मगर वैसे मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए तो यही चाहिए होता है, बिकॉज द कैमरा एड्स 10 पाउंड्स एज वेल आई बिलीव। हाँ बिल्कुल, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि आप स्मार्ट हो, सिर्फ अपने फूड को देखो हम क्या खा रहे हैं, क्या इंटेक तो ले आप क्या करती हैं? कोई आप जिम जाती हैं या सिर्फ जिम जाती हूँ। जिम जाती हैं? हाँ, डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। डाइट का भी ख्याल रखती हैं और जिम जाते हैं? अरे बट साहब ये तो बड़ी आपकी वाली हरकतें हैं। अभी आपने बताया था ना कि आप बड़े, किसी भी इंसान को जिसने अपने आप को फिट रखना है उसको अब एक्सरसाइज की जरूरत है, बिल्कुल। चाहे वो जिम जाए चाहे वो ट्रैक और पे आप जाए। बड़े कीन एक्सरसाइजर हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जी, तो आजकल कितना दौड़ रहे हैं आप? सर आजकल 5 किलोमीटर पे ले आए हैं। 5 किलोमीटर पे ले क्योंकि रमज़ान से पहले रूटीन को मैं चेंज करता हूँ, मैं बॉडी वेट्स ਸਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। तो इतने तुम नेगेटिव थॉट देते हो मैं ना। अच्छा, आपने जो काम की बात की है, इससे पहले भी मैं आपके शो पे आया, मैंने उस वक्त भी जिक्र किया कि 2 साल हमारे शुरू के मुश्किल गुजरेंगे। आप ये देख लें, आज सिर्फ डॉलर को देख लें, डॉलर कहाँ पे आके खड़ा है। और अपनी इस वक्त पाकिस्तान रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर इज़ द बेस्ट करेंसी। हम बड़े लोग पहले वो हमें मिसाल देते थे कि जी डॉलर ऊपर गया, आज आर्टिफिशियली हम उसको नहीं रोक रहे। आपकी इकोनॉमी जो है वो उसका व्हील अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ। सर मैं बड़ा परेशान हाँ कि रुपया ऊपर जा रहा है पर मेरे को क्यों नहीं आ रहा, ये बड़ी परेशानी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ तो उत्ते जाना पड़ेगा। नहीं है अपना कोई खास रंग आली जा, मगर हालात से है काफी तंग आली जा। और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा। हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आली जा। क्या ही बात है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उस वक्त ये बताएं, फूड इंजीनियरिंग और एक्टिंग का आपस में क्या ताल्लुक है? फूड इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट तो करनी थी, पेरेंट्स की तरफ से था पहले कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये शौक मुझे शुरू स्पेसिफिकली से यही था। डिग्री पेरेंट्स ने कही हुई थी? बस मेरी एक सीनियर कजन थी, उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी की थी, तो उसी यूनिवर्सिटी से तब ये न्यू स्टार्ट हुई तो थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये करके गई है तो अब यही वाली डिग्री हमारी बेटी भी करेगी। नहीं, उन्होंने टेक्नोलॉजी की थी, मेरी इंजीनियरिंग है। फूड की इंजीनियरिंग जो लड़कियां करती हैं उनका फायदा बहुत, आगे जाके शादी होनी है, शादी होगी फिर खामन को क्या पसंद है वो खुद बना के लेके बिल्कुल आएंगी। नहीं। यही तो वो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है उस डिग्री में। यही तो मैं क्लियर कर रही हूँ, अच्छा जी, कुकिंग नहीं है। लेकिन मुझे क्लियर करे ना, तो क्या फिर सोचा क्या, चले ये डिग्री तो आपने वैसे ली है, सोचा ये फूड की फील्ड में भी कुछ करना है, अच्छा काम। फूड जो के बारे में जाया हो रही है उसको जो है हमें सेव करना और गरीबों तक पहुंचाना। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब आप शो पे आए थे तो मुझे याद है आपने बड़ा एक हैबतनाक मंजर एक खींचा था कि जब आप घर वापस जाएंगे तो न जाने क्या क्या होगी आपके साथ। कुछ चिमटों का जिक्र हुआ था। जी, बिल्कुल। और इस तरह बाहर बंद हो जाने का ये जिक्र हर हुआ। घर की स्टोरी है। तो ये नहीं मगर ये एक्चुअली में क्या कभी उसके बाद हुआ? नहीं, मैं असल में इसीलिए इधर बोल के गया था, वो फिर थोड़ा रिजर्व हो गया था काम। उन्हें एहसास हुआ कि ये अब अवाम में बैठ के बोलना शुरू हो गया है, तो इस वजह से जुल्म की दास्तानें बाहर जाना शुरू बाहर जाना शुरू हो गई है चार दीवारी और से। वैसे भी अगर पड़ी भी हो तो मैं बताऊंगा थोड़ी इधर। इधर तो यही बयान चलेगा, नहीं बचत आप होगी। इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? सर बहुत, अल्लाह ताला। आपको उनकी कसम है, बताएं क्या हुआ था? तो वैसे इसमें शायद खामोश रहना पसंद करेगा। अच्छा खामोश रहने वाली बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ शी अंडरस्टूड इट, बट एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में थोड़ा हंसी मजाक जो है वो हंसी मजाक होता है। वैसे आप मुझे बताएं, आप इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मिली हैं? नहीं तो ये पहले पॉलिटिशियन थे जिनसे आप मिली? जी। तो कैसे लगे आपको? ये डिफरेंट लगे या वो जो पॉलिटिशियन रवायती होते हैं आप एक जहन में होते हैं उसी नहीं, तरह? ही इज लुकिंग डिफरेंट, नाइस, और फूड के रिलेटेड। मॉडल भी हैं आप, तो कैसे लगे वैसे आपको फिटनेस और इनकी ड्रेसिंग फिटनेस सेंस तो अच्छी, आई वगैरह? एम इम्प्रेस्ड।
impressed सर आप अच्छे लगे और आपसे impress हुई हैं ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ नहीं मगर ये क्या ऐसे वैसे आमतौर पे आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जी कभी कभार घबरा क्यों बताइए वो नहीं कुछ ज़्यादा कभी मिलते हैं बस लोगों से अच्छे compliments मिल कौन से लोगों से जाते हैं। जानने वाले लोग जिनसे नहीं तो आपको मुलाकात नहीं होती है। जानते जैसे जैसे अभी इनसे स्ट्रेंजर मुलाकात से हुई ना- ऐसे होता है नहीं स्ट्रेंजर से तो नहीं लेकिन अक्वेंटेंस कि खवातीन कहती हो कि पहली बार मैं आपको देखा और वो कहें कि आपने बहुत इंप्रेस किया एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी आपकी उमर साहब नहीं कोई ऐसी खास मेरे जेहन में आ नहीं रही मगर अभी इन्होंने तो कहा नहीं नहीं अभी इन्होंने कहा तो शी इज़ द फर्स्ट वन जी मैं शी इज द फर्स्ट वन जी 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 पूरी जिंदगी में अब इनका दिल है मुझे बाकी चिमटे पड़े आपका डिम्पल भी ज्यादा गहरा हो गया ये बात सुन हाँ वैसे ही है डिम्पल भी आप देखें उसमें इनको डिम्पल भी पड़ते हैं सिर्फ चिमटे नहीं How you doing, I'm boy? good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? At least I found it a business in these days. A great business. वो नहीं होते गरम मसाले कहते नहीं उन्होंने ਦਾ ਟਾਪ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਥੋਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ओके ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟੂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਅਗਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਲਾਣੀ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸੋਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ मर्सिडीज ही होगी हाँ किसी ने किया है so could you please give me just 10,000 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਕੀ तमाम बुस्तो बंद मेरे पास है मसला ये है कि मेरे पास बस्तो बंद नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਮਸਾਲਾ ਮੁਫਤ ਦਿਆਂਗਾ वैसे दे दो मेरे पास पैसे तो नहीं है ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ आप ट्राई करें आपके पास है कोई ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ मेरे पास एक मशवरा है आपके लिए गवर्नमेंट ने एहसास कफालत उसके अलावा एहसास नौजवान प्रोग्राम उसके ज़रिए आप लोन लें ये बिज़नेस आपका बहुत अच्छा है आप मेहनत करना चाहते हैं आप वो लोन लेके मसाले लें ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ये आपके एमपी हैं और चेयरमैन पंजाब फूड This guy- अथॉरिटी यस ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ बच्चों के एमपी नहीं है और वो पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है ਦਿਸ ਗਾਇ Yes. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਰ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਆਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ All right. ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਲਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਇਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ उमर तनवीर भट्ट उमर तनवीर भट्ट साहब आई लव उमर तनवीर भट्ट साहब फूड अथॉरिटी जिंदाबाद कोई हिलजुल नहीं हुई नहीं मैं बता तो रहा हूँ आपको जाना पड़ेगा आप अप्लाई करें एहसास प्रोग्राम के तहत और जो आप करना चाहते हैं अच्छा अगर आपको सिर्फ खाना चाहिए तो फिर आप उधर लंगर खाने पे चले जाएं
वहाँ पे आपको बेहतरीन खाना मिलेगा, अफ्तारी, सहरी, ये सारे इंतजामात हैं। इसलिए आप ये वाला बहाना तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं, दिस इज गुड, उन्होंने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है, बट लंगर खाने बनाने का की फायदा? सर फैक्ट्रियां बनानी चाहिए, इंडस्ट्री बनानी चाहिए जी, वो भी महंगाई कम करनी आज चाहिए। फैसलाबाद की तमाम फैक्ट्रीज जो है, लूम्स जो हैं, सब माशाल्लाह वर्किंग कंडीशन में हैं। जी मैं देखा चल रही ने, बस उन्होंने तेल देना। सिंगर वेख लो, वेख लो भुखे मुंह वाला सिंगर वेख लो। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। उसवा ये बताएं कि अब आप एक्टिंग ही करना चाहेंगे आगे, जी या ये डिग्री की तरफ वापस जाने का प्रोग्राम है? अभी फुल डिसाइड ही नहीं है, लेकिन डिग्री में मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा पॉजिटिव ना, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सर्टिफाइड नहीं है और ऐसी फूड बना के वो दे रही है ना। अगर कंपनीज में चले जाओ ना तो वहाँ पेस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, चूहे हैं वहाँ पे, लीजर्स हैं वॉल्स पे, इतने बड़े बड़े होल्स हैं वहाँ पर। तो मैंने इंटर्नशिप की थी तो मैंने बहुत कुछ लर्न किया, देखा है। रॉन्ग सर्टिफिकेशन मिल रही है, मतलब वो कुछ है नहीं उनके पास, सेफ्टी नहीं है इतनी, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट है। और जो सर्टिफिकेट बॉडीज़ हैं उनका भी कंपटीशन लगा हुआ है कि हम इनको सर्टिफिकेट दे दें, ये हमसे करवा लें। तो वो बहुत गलत चीज़ हो रही है, जो मैं चाहूँगी इनसे कि उस पर देखें, लुक आउट नहीं जी, करें। बट साहब उन्होंने तो काम निकाल दिया, उन्होंने कहा इनकी सर्टिफिकेशन और वो तो चेक कराए ना आप सारे। ये एक बड़ा कमरसम प्रोसेस था सर्टिफिकेशन का। इसके पहले पीछे लेजिस्लेशन चाहिए थी। हमने फिर थ्रू CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसके थ्रू हमने एक तो पाकिस्तान स्टैंडर्डाइजेशन करवाई है नेशनल लेवल पे। अब उसकी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको फील्ड में ऑपरेटिव करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता वैसे आहिस्ता। मुझे बात है, आपने मोटरवे स्क्वाड भी एक बनाया है जी। ये क्या करता है एग्जैक्टली? ये उत्थे वन व्हीलिंग करता जी। गाड़ी है उनके पास, अच्छा, मोटरवे पे नहीं हो सकती। सुल्तान गोल्डन ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ। मोटरवे स्क्वाड का बेसिक मकसद ये है कि हमारे जितने फूड आउटलेट्स हैं इस वक्त मोटरवेज़ के ऊपर, उनकी कांस्टेंट चेकिंग ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग इस वक्त आपकी लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पे है। तो इनिशियल फेज़ में हमने उसको केटर किया है। इससे पहले हमारी जो अमूमन, चूँकि लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वजह से हम 3 महीने में अमूमन एक शॉप के पास दोबारा विज़िट करने जा सकते हैं। ये ओवरऑल आपको टर्न अराउंड टाइम बता रहा हूँ। अब ये है कि हर हफ्ते में 3 दफ़ा तमाम जो स्टॉप्स हैं उन सब की 3 दफ़ा चेकिंग होती है हफ्ते में, रैंडम। तो इसके लिए हमने एक अलग जो है स्क्वाड कायम किया। उसके अलावा बाइक स्क्वाड बनाया जो तंग गलियों में और उन जगह पे जाके एक्सेसिबिलिटी जिनकी बेहतर हो। तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने की। जिन जिन जगहों पे हम पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे आप जबरदस्त। वेरी गुड। Ready, 1 2 3 4 ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ, ਹਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਏ, ਬਈ ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਟਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੈਰ ਏਡਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CM ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ओके, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। नहीं होना सी। ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੱਢਿਆ ਸਾਈਕਲ, ਉੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲੇਕੁਮ ਸਰ ਖੈਰ। ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। अरे वाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਲੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਚੋਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲੇ, ਬਰਗਰ ਚੋਂ ਲਾਲ ਬੇਗ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਅਰਤਗੁਲ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ PTI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਜ ਚੋਂ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਅਚਾਨਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 1000 रुपया? 1000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1000 रुपए को इन्वेस्ट करना है? ਯੈਸ, ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਛਾ। ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਠੱਪ 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 ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਓਏ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਏ ਔਰ ਖਾਤੇ ਜਾइए। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। इसके बाद उन्होंने आपको क्या कहा? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਏ ਔਰ गेट आउट हो जाइए। बनता भी यही था इसके बाद। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਚੱਲਾਓ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਫੂਡ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। Yes। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਵੀਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ? ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਈਸ ਮੈਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ये भाभी नहीं है। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਥਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। अरे ओ भाई, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। जी जी नहीं कोई ऐसा साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ एडा खतरनाक सियासत नाल इत्थों तक ले आए हो ते अग्गू क्यों लुका रहे हो? वो नहीं है, वो सारे राज निर्गोली आपने इधर ही बता दिए स्टेज के ऊपर। क्या कर रहे हैं ये? कैमरे के ऊपर है, ऑन एयर है, घर तक बात चली जाएगी। नहीं नहीं ये दूसरी वाली नहीं है, वो जो आपने पैसे लिए थे आप वापस करेंगे राज खोल के। सारे मैं थोड़ा मजाक कर, ये थे उस बाजी ने। जी जी मेरे फैन ने, आपके नहीं, आप इनके होने मैं इन्हां दा फैन हां। मैं इन्हां दा ड्रामा देखिया 12 दरवाजे। उसने मैंने तारीख दा पता लगा भी लाहौर दे वाकई 12 दरवाजे ने। अच्छा। माशाल्लाह ऐसे ले जड़ियां टॉप दियां फनकारां ने। हाँ जी। वो कितने ने? कराची ने ना जी, कराची हब हैगा। अच्छा। ड्रामे दा हब हैगा। सर कहना ये वे 1 फोटो प्लीज। जी प्लीज। पुरानी फोटो मेरे को थोड़ी पई है सर, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਦੇ तो 2 साल पहले शुरू कर दिया इकट्ठियां करनी। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ। किस तरह जी? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। वो क्यों? ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਠਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। व्हाट्सअप ये बताएं, 3 नाम आपको मुझे बताने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो कि अगर आपको चॉइस मिलती तो आप कहते हैं कि ये यहाँ भी हो सकते हैं हमारी पार्टी में। चौधरी निसार, चौधरी निसार अली खान, शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी, 2 हो गए, 1 रह गए। मलिक अहमद खान साहब। मलिक अहमद खान जी एमपीए हैं, वेरी फाइन पर्सन। बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब, 3 लोग इन्होंने गिनवाए। ये बताएं, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में 2 सीटें, एक अपनी दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा। किसको छोड़ना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फैसल वाडा। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत रह गए चांद पे, ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब यासिर हमायूं, मुराद रॉस और अलीम खान साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? राजा यासिर। राजा यासिर हमायूं। स्माइल किसको दे रहे हैं?
علیم خان. اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آ گیا؟ پیچھے ایک ہی بچا. مراد واش. ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر، ٹائٹینک پر جا رہے ہیں، 2 VIP پاس ہیں، ایک اپنا ہے، دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں. کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جائیں کوئی گے؟ اچھا آپشن دیجیے گا. ایسا ویسا آپ کی سوچ ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور اسوا. یہ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا. اس کا تو بڑا کلیئر سا جواب ہے. کیا جی؟ اسوا. ان کا جواب ہے، میں نے تو ان کی پارٹی سے بھی دیا. آدھی رات کا وقت ہے، شدید بوریت کا عالم ہے، ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے. وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میاں اسلم اقبال اور مہوش حیات. پرائڈ آف پرفارمنس کس کو ملا پریزیڈنشل؟ مہوش حیات صاحب. تو ظاہری سی بات ہے پھر ان کو. مہوش حیات کو اب ان کی زندگی کا سفر پوچھوں گا ان سے کہ کیسا گزرا. بالکل. جرنی ان کا ول بی ویری انٹرسٹنگ. تھوڑا جا سفر پوچھ کے اگلا سفر خراب کر رہے جب. ڈوبتی کشتی میں سوار ہے، 2 لائف جیکٹ ہیں، ایک اپنی دوسری کسی اور کو دینی. کس کو دے رہے ہیں دوسری لائف جیکٹ؟ آپشنز ہے آپ کے پاس بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز. یہی 2 آپشن ہیں ویسے. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو. ٹھیک ہے. گڈ سر. جی اس وقت آدھی رات کا وقت، شدید بوریت کا عالم، ایک کال کا بیلنس، وہ ایک کال کس کو کر رہی ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس ہے اکرم اداس اور کیسر پیا. کیسر میاں. کیسر پیا. اوئے ہوئے. یہ جائے. آپ بھی ٹائٹینک پر جا رہی ہیں، 2 VIP پاس، ایک اپنا دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتے. کس کو ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہیں گی؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس عدنان صدیقی اور ہمایوں سعید. عدنان صدیقی. عدنان صدیقی ہیں وہ. یہ بتائیے میڈم، مجبوری کے تحت ان میں سے کس کی تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگائیں گی؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب رانا ثناء اللہ اور فیاض الحسن چوہان. اور آپشن نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہی 2. ہمیں نہیں ملی، آپ کو کیوں دیں گے؟ ارے واہ. رانا ثناء اللہ. رانا ثناء اللہ. اوہ جوان صاحب دیکھ لیں. یہ بتائیے، ڈوبتی کشتی میں 2 لائف جیکٹس ہیں، ایک اپنی ہے، دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ کس کو دے رہی ہیں آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کیسر پیا اور عمر بٹ. عمر سے. آپ تو ڈوب گئے. مگر انہوں نے ویسے بالکل صحیح کہا کہ آپ تو ڈوب گئے، اور آپ پروگرام چلنے کے بعد. Umar, thank you so much for being on the show. Always, it's a great pleasure to have you on our show. اس وقت آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سر آ جائیں پھر.